Hi everyone, welcome to my math channel. So my dear friends, today I'm here to discuss probability. Clear? Addition's theorem on probability. Before that, I want to recite clear extreme motivational dialogue. So that is, खुदी को कर बुलंद इतना खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बता तेरा रजा क्या है बता तेरा रजा क्या है. So my dear friends, in this video you will get a complete idea about additional theorem on probability. So probability of two events as well as probability of three events. Clear? And different types of examples. आपका ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को अच्छा से वॉच करो, फिर लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. सो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. रिमेंबर इट माय डियर फ्रेंड्स. Practice improve your quality, practice improve your standard, practice improve your skill, practice improve your strength, practice improve your muscle power in the subject. Practice will make you a master for board, JEE as well as JEE advanced exam. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellency is an art. It is the regular habit of practice. Remember it. Discuss about addition theorem on probability. Addition theorem, if A and B be any two events, then probability of A or B, so that is equal to, you have to write now, probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersections B है. So my dear friends, आपको क्या करना है? Suppose if you considers like this is A event, and so this is what? So this is B event. ठीक है? And whole of this ones should be a sample space A है. So this is a sample space A है. A जो part है, so this is A part, you will say that A intersection B है. ठीक है? So what you write here, so this is number of A union B, so that is equal to is what? नंबर ऑफ ए देखो पूरा ए कंसीडर हो रहा है, फिर प्लस नंबर ऑफ बी में भी पूरा कंसीडर हो रहा है, लेकिन ये दो बार कंसीडर हो रहा है, इसीलिए हाउ टू राइट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी. अभी क्या करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी को नंबर ऑफ ए से जब आप डिवाइड कर दोगे, सो दैट टाइम हाउ टू गेट नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस. So this is number of B over number of S, and so this is number of A intersections B over number of S. So that is what? So this is equal to probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B है. ये आपको क्लियर समझ डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. लेकिन यहीं पे जब ऐसा होगा, ठीक, इफ A and B are two mutually exclusive events, then so this is number of A intersections B equal to 5. So therefore probability of A intersections B क्या होगा ना, 0 होगा. Mutually exclusive events का मतलब है they do not have any common sample points. So therefore clear probability of A union B, ठीक है, so that is equal to is what? Now probability of A plus probability of B. ये आपको ध्यान में रखना है जब mutually exclusive होगा. Now addition's theorem on probability का second theorem है, if A, B and C be any three events, then probability of A or B or C is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersections B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersections B intersection C है. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, सपोज ऐसा है, ऐसा सिचुएशन है, सपोज यू कंसीडर्स लाइक दिस इज ए इवेंट, सपोज यू कंसीडर दिस इज क्लियर, एंड सो दिस इज वर्ड सी इवेंट्स. ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी है. ये जो पार्ट है क्लियर, ए पार्ट क्या है, देखो ए पार्ट है, सो दैट इज व्हाट? ए इंटरसेक्शंस बी इंटरसेक्शन सी. ए पार्ट है ए इंटरसेक्शंस बी, ए पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी, ए पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी है. ठीक है, क्लियर. समय डिफरेंस यहीं पे आपको क्या करना है, देखो क्लियर. सो आपको करना क्या है ना, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C. सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने इसको कुछ एक कंसिडर कर लिया A, सो दिस इज व्हाट? D इक्वल टू B. ठीक है, सो एंड देन व्हाट विल डू, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ D माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन D है. Now probability of A, so this is probability of D means क्या? B union C minus probability of A intersections B union C. So that is what? Probability of A. So this is probability of B. So this is probability of C minus probability of B intersection C. And so this is probability of A intersections B, clear, union A intersection C. So this is equal to what to write? So this is probability of A. So this is probability of B. So this is probability of C.
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और यहीं पे क्या होगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों का इंटरसेक्शन ऐसा ही होता है। अभी इसको आप अरेंज कर देना। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, इन ए सेम वे जब ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज नॉट, सो जब ऐसा होगा, सो दिस इज इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। देन होटल से ना, देन होटल से ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है। तो इन दैट केस में क्या होगा, ए बी एंड सी के बीच में कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट्स नहीं होगा, तो ए जीरो होगा, ए जीरो होगा, ए जीरो होगा, ए जीरो होगा। ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज थ्योरम 2 है, इसे आपको समझने का कोशिश करना है। Now theorem 3 है, if A and B be any two events, then probability of A minus B equal to probability of A minus probability of A intersections B है। So my dear friends, clear? Suppose if you consider so like this is A event and so this is what B event, ठीक है, this is A, this is B है। ये जो पार्ट है, A पार्ट है A intersections B है, ए इंटरसेक्शंस बी। सो दैट मीन्स क्या, ए पार्ट है ए माइनस बी, सपोज ए पार्ट फाइंड करना है बी माइनस ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी को माइनस कर दो। ऐसा करके आप ए भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस नथिंग एल्स। ठीक है, यही आपको समझना है। Now, a natural number is chosen at random from the first 100 natural number. Find the probability that it is divisible by 2 or 3 है। Clear? So my dear friends, divisible by, suppose if you consider a number divisible by 2, क्लियर, डिविजिबल बाई 2 को यू ए इवेंट कंसिडर करो एंड डिविजिबल बाई 3 को ए बी इवेंट कंसिडर करो। एलसीएम ऑफ 2 and 3, सो दैट इज 6, सो दैट इज व्हाट ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 3 का मतलब है यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। So that means what we'll write here, so this is probability of A union B, so that is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B है। probability of A divisible by 2 है, clear, so that is what 50 by 100। probability of B, so this is 33, क्लियर, सो दिस इज बाई 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, 6 का कितना मल्टीपल होगा 16, 6 16 या 96, सो दिस इज 16 बाई 100 है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट 83 माइनस 16 बाई 100 है, सो दैट इज, so that means is what, so like this probability that it is divisible by 2 or 3, so that is what now 67 by 100 है। यही आपको समझना है, try to understand it। Now question number 2, a card is drawn at random from a pack of 52 cards, find the probability that it is a court card or a face card। कोर्ट कार्ड क्या होता है देखो, so this is कोर्ट कार्ड का मतलब है, so that is what कोर्ट कार्ड जिसमें गेम जीतने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, एस किंग क्वीन एंड जैक, नंबर ऑफ कोर्ट कार्ड सो दैट इज 16 है। फेस कार्ड किसको बोलते हैं ना, फेस कार्ड मीन्स क्या, जिसका सामने फेस है, फेस किसका सामने है, किंग क्वीन एंड जैक, सो दैट इज व्हाट 12 है। सपोज मैंने इसको ए इवेंट ले लिया, इसको बी इवेंट ले लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, सो दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, so this is equal to is what now probability of A plus probability of B minus probability of A intersections B। probability of A, so that is what 16 by 52, probability of B 12 by 52, and ये दोनों में intersections क्या है ना, so this is also 12 by 52 है। ठीक है, दिस इज कैंसिल, सो दिस इज 16 by 52, 4 से कैंसिल करो, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज 4 by 13 है। यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Now another fantastic question, question number 3, a die is thrown twice, find the probability that the sum of the two faces is divisible by 4 और 5 है। जब die क्लियर is thrown twice, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा ना, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इक्वल टू 6 इंटू 6, सो दैट इज 36। अभी बोल रहे हैं सम ऑफ द टू फेसेस इज डिविजिबल बाई 4 और 5। ठीक है, क्लियर, सपोज ए इज द इवेंट जो डिविजिबल बाई 4 है, तो 4 के लिए अब क्या क्या हो सकता है देखो, डिविजिबल बाई 4, ठीक है, डिविजिबल बाई 4 का मतलब क्या है, सो दैट इज व्हाट दिस इज 4 8 एंड 12 है। ठीक है, तो 4 के लिए ऑर्डर पेयर क्या क्या हो सकता है, 1 3, इसका उल्टा 3 1 एंड 2 2 है।
ठीक है। 8 के लिए क्या होगा, दिस इज 4 के लिए, दिस इज 8 के लिए क्या होगा ना, सो दिस इज 2 6, सो दिस इज 6 2, सो दिस इज 3 5 एंड सो दिस इज 5 3 एंड सो दिस इज व्हाट 4 4, ठीक है। एंड 12 के लिए तो एक ही ऑर्डर पेयर होगा, सो दैट इज 6 6। ये सब ए इवेंट है, क्लियर। सो ए इवेंट इज दिस। अभी बी इज डिविजिबल बाई 5 है। 5 का मतलब क्या है, डिविजिबल बाई 5 मीन्स क्या, 5 एंड 10 है, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, मैक्सिमम जो है डाई के लिए जब 2 बार थ्रो करोगे तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू इज 12 है। तो 5 का ऑर्डर पेयर आपको देखना है। सो दिस इज 1 4, सो दिस इज 4 1, सो दिस इज 2 3 एंड सो दिस इज व्हाट 3 2 5 का, एंड सो दिस इज 10 10 के लिए क्या होगा, सो दिस इज 4 6, सो दिस इज 6 4 एंड सो दिस इज व्हाट 5 5, क्या, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको प्रोबेबिलिटी 4 or 5, so that means is what probability of A or B, so this is what probability of A union B, ठीक है, ये आपको देखना है। so this is equal to is what probability of A plus probability of B minus probability of A intersections B। probability of A कितना केसेस है, देखो 3 3 5 8, ठीक है, एंड सो दिस इज 9 केसेस, सो 9/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कितना केसेस है, दिस इज 3 केसेस एंड 4, दिस इज 7 केसेस, 36। अभी देखो ये दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या, यहीं पे क्या 4 8 12 है एंड यहीं पे क्या 5 एंड 10 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी तो कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, सो दिस इज इक्वल टू 0 है। तो 9 + 7, सो दिस इज 16, 4 से कैंसिल करो, दिस इज 4, सो दिस इज वर्ड, सो दिस इज 9 है। ये आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली बोर्ड एज वेल एज जेईई एग्जाम में पूछा जाता है। Now, a die is thrown 2 times. Find out the probability that at least one of them shows the number 3 है. At least one of them shows the number 3 है. Suppose clear, जिसका first die, A is the event जिसका first die shows 3 है, ठीक है, first die shows 3. So that means क्या क्या possibility है ना, so this is 3 1, this is 3 2, this is 3 3, so this is 3 4, this is 3 5 and so this is 3 6. B is the event जिसका second die, ठीक है, second die shows 3 है, so what will say, so this is 1 3, so this is 2 3, so this is 3 3, this is 4 3, this is 5 3 and so this is 6 3, ठीक है, क्लियर। समझ डियर फ्रेंड्स, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो रहा है, देखो ए पार्ट कॉमन है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज, जब ए पार्ट कॉमन है, सो दिस इज वर्ड 3 3, क्लियर। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब है, सो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना केसेस है, 6 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए भी 6/36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस भी ओनली 1 केसेस है, सो दैट इज व्हाट 11/36। यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम एज वेल एज जेईई एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है। Now a card is drawn from a pack of 52 cards. Find the probability of getting a king or a heart or a red card. ठीक है, सो दैट मीन्स क्या, तुम्हें ये फाइंड करना है किंग or heart or red card. So that means what to write here, so this is king union heart, so this, so what to get probability of king, so this is probability of heart and so this is probability of red card, minus probability of k intersections h minus probability of k intersections r minus probability of h intersection r plus probability of k intersection h intersection r, ठीक है। सो किंग कार्ड कितना है ना, 4/52। हार्ट कार्ड कितना है, 13/52। रेड कार्ड कितना है, 26/52। क्लियर। हार्ट में किंग कितना ना, 1/52। रेड में किंग कितना, 2/52। रेड में हार्ट कितना ना, 13/52। क्लियर। रेड में हार्ट 13, 13 में किंग कितना, सो दिस इज 1/52। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज कैंसल, सो दिस इज क्लियर, 13/52, 13/52, ठीक है। अभी जो रिमेनिंग पार्ट है 4 + 26, सो दैट इज 30, 30 - 2, सो दिस इज वर्ड 28/52। इसको 4 से कैंसिल करो, सो दिस इज 7, सो दिस इज 7/13 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज जेईई एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। Another fantastic questions, clear from probability, what is the chance of getting 4 or 7 or 12 in a throw of 2 dice, ठीक है, क्लियर। समझ फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, देखो सो दिस इज इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइस। तो 4 के लिए व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 4 और 7 और 12 इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइस। तो 4 के लिए ऑर्डर पेयर क्या क्या हो सकता है, सो दिस इज 1 3 3 1 एंड 2 2, ठीक है। 7 के लिए ऑर्डर पेयर क्या क्या हो सकता है, सो दिस इज 1 6, सो दिस इज 6 1, so this is 2 5, so this is 5 2 and so this is 3 4 and so this is 4 3 and 12 के लिए क्या क्या हो सकता है ना, 6 6,
ठीक है, clear? So my dear friends, suppose you considers getting 4, that is A event, so getting 7, that is B event, and getting 7, that is C event. ठीक है, क्लियर? आपको अभी क्या करना है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियर ए और बी और सी, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, सो दैट इज व्हाट, क्लियर? देखो यहीं पे कोई भी कॉमन सैम्पल पॉइंट्स नहीं है, सो दीज आर डिसजॉइंट, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है, यहीं पे क्लियर 3 ऑर्डर पेयर है, 3/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इस पे 6 है, 6/36, ठीक है, एंड इस पे एक ही है, सो दिस इज 1/36, सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज 10/36, अभी 2 से कैंसिल करो, सो दिस इज 5/18 है। यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एज वेल एज जेईई एग्जाम में पूछा जाता है। The fantastic questions. The probability that a person will travel by plane is 3/5 and that he will travel by train is 1/4. What is the probability that he will travel by plane or train? So clear, जब भी कोई एक पर्सन प्लेन में जाएगा और क्लियर प्लेन में जाएगा और ट्रेन में, एक साथ तो नहीं होगा, क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, इन दिस केस पे आप क्या करोगे, सपोज प्रोबेबिलिटी, what is the probability that he will travel by plane or train? So that means you what will find out union t, so this is probability of p plus probability of t है, इस पे कोई intersections नहीं होगा, so that is probability by plane is 3/5, probability by train is 1/4, ये दोनों का LCM क्या है, so this is 20, this is 12, this is 5, so that is what, 17/20, यही आपको समझना है, try to understand it. Now, the probability of a student selected in IIT is 1/3 and JEE Main is 1/2. Find the probability that he or she will get selected either of them. ठीक है, clear? So IIT के लिए this 1/3 and JEE Main के लिए, so this is what, probability of IIT equal to is what, 1/3, probability of JEE Main equal to 1/2. Clear? Find the probability that he will get selected either of them. So that means क्या, probability of I or J. So that is what we'll write. So this is I union J. So that means probability of I minus probability of माइनस नहीं प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटरसेक्शन जे, ठीक है, तो यहीं पे ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जे। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई का मतलब क्या है ना, 1/3, सो दिस इज 1/2, 1/3 इंटू 1/2 है, क्लियर? एलसीएम कितना है ना, सो दैट इज 6, this is 2 plus 3 minus 1, so this is 4/6, so that is what, so this is equal to 2/3 है, ठीक है, यही आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। राख हौसला वो मंझर भी आएगा, प्यासा का पास खुद चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू हैव गॉट 8 फैंटास्टिक क्वेश्चंस। आपका ये ड्यूटी बनता है सारे क्वेश्चंस को अच्छा से वॉच करो, लगन लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस। Excellency is an art. It is the regular habit of practice. Don't forget to subscribe my math channel. All the very best for your better future.